Beyond the roles of a mother, sister, wife, and daughter, a woman has an identity in her own right, with aspirations, talents, and possibilities. The world presents numerous challenges to women, who are often at the receiving end of injustice in the form of inequality, violence, and marginalization. The Asia Foundation is an international NGO which integrates women's empowerment in all its programs, recognizing gender equality as a fundamental driver of economic and social development. The Asia Foundation recognizes the very important role that women have to play in Pakistan. Unfortunately, our economic prosperity is not going to be realized with the kind of labor force participation rates we have for women. So we are committed to creating safer spaces for women, giving them more economic opportunities, and enhancing their political as well as their community participation. Women find it difficult to access justice in Pakistan due to the stigma attached to approaching courts, inability to afford lawyers, and difficulty in understanding cumbersome court procedures. On the other hand, mechanisms of alternative dispute resolution provide a useful legal alternative for women to seek justice outside of the courtroom. The Asia Foundation's project, Mainstreaming Alternative Dispute Resolution for Equitable Access to Justice in Pakistan, aims to strengthen these mechanisms that can help quickly resolve civil and family disputes. हमारी जो ख़वातीन हैं उनका मसला ही बहुत बड़ा ये है कि उनको सुना नहीं गया। अक्सर औरतें मुझे कहती हैं, वो कहती हैं जी आपने मेरी बात सुन ली है, मेरी भड़ास निकल गई, मेरा तो गुस्सा ही ख़त्म हो गया। 20 साल से मैं ये बातें बताना चाह रही थी, सुनते नहीं थे। मैं आपको कह रहा हूँ आफ्टर 45 ईयर्स स्पेंडिंग इन द कोर्ट्स कि ये डिज़ाइंड ही नहीं है फैमिली मैटर्स के लिए। ADR का फ्यूचर बहुत ब्राइट देखता हूँ मैं, और मुझे लग रहा है कि हमें बहुत तेज़ी से इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि कोर्ट्स पे हमारा बर्डन कम होगा। I can tell you with certainty that there are more than 50 women who asked me that they are unable to explain their case verbally before me, being a male, and they opted to write it down in the shape of a letter. And if there is a female mediator, I'm sure they can explain more amicably and they can seek their help. We were teaching Arbitration Act in the LLB curriculum, but we wanted the ADR as a main course so that the students should have an idea about this. So under this project, our faculty introduced this subject, and they wanted that it should be added into the main courses. It became a 3-credit course in the final semesters of our students. I felt very good that it helped me professionally, and I could relate so many things, and that the commercial disputes or the corporate side have so much to do with this thing. ADR का कोर्स का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, स्पेशली ये कि आउट ऑफ द कोर्स सेटलमेंट वगैरह, क्योंकि जब आप कोर्स में जाते हैं देखो आपका लेंथी प्रोसेस होता है, कितने ईयर्स आपके लग जाते हैं और आपका टाइम और आपका मनी वगैरह वेस्ट होता है। तो एरिया का ये है कि आउट ऑफ द कोर्स सेटलमेंट है, आपके मीडिएटर नेगोशिएशन से आपके काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम है लाइक फैमिली मैटर्स, सिविल मैटर, जो छोटे मोटे मैटर्स होते हैं
वो आपको कोर्ट में लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आप आउट ऑफ द कोर्ट मतलब थ्रू मीडिएटर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे यहाँ में एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है आपको एक स्किल मिल जाती है क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए भी, और लाइक वुमेन्स के साथ भी, मेहंदी के साथ भी डीलिंग मतलब आपकी आसान हो जाती है। प्लस इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम हैं। हम लोगों को कोर्ट जाने से पहले मतलब कुछ ऐसे प्रोसीजर्स बता सकते हैं या इस तरीके से आगे चलने को कह सकते हैं जिससे वो ज़्यादा बेहतर अपनी लाइफ को लेकर चल सकते हैं, और ये एक अच्छा प्रोसीजर है बनिस्बत कि हम केसेस की तरफ और कोर्ट्स की तरफ जाएँ। लीगल राइट फोरम ने एशिया फाउंडेशन के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाया जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम था, उसकी अवेयरनेस के हवाले से था। गवर्नमेंट सिंध बाउंड है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सेफ होम बनाएंगे। तो उमरकोट में एक ऐसा वाक़या हुआ कि जब रात को लोग 12 बजे सेफ होम पे पहुंचे तो सेफ होम में कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं था, लेकिन उसको लॉक लगे हुए थे। उन्होंने जो हमारे जो यूथ एम्बेसडर थे वो उनके राब्ते में, उन्होंने हमें मैसेज किया, यानी मुझे मैसेज किया, तो मैंने वही मैसेज सेम फॉरवर्ड किया अपने वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब को, सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी को, सिंध कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन को, और आईजी साहब की ऑफिस में कंप्लेन सेल है। तो हमने ये देखा कि 1 घंटे के अंदर अंदर किसी भी इदारे की तरफ से एक्शन हुआ और वहाँ पे जो स्टाफ है विद इन 1 आवर अवेलेबल था। जो लोग सेफ होम की तरफ आए थे तो उनको वो सेफ स्पेस मिली। दस्तगीर लीगल एड सेंटर इस वजह से यूनिक समझे जाते हैं और यूनिक हैं कि हम अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन रूफ ऑल टाइप ऑफ एक्सेस टू जस्टिस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है, चूँकि हम ख़वातीन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन हो रहा होता है, कि हमारे पास जो लॉयर्स भी हों वो ख़वातीन ही हों। हम लोग इस चीज़ पर पहुंचना चाह रहे थे कि एसिड अटैक्स हो क्यों रहे हैं। तो हर केस में एक सेंटेंस ने हमें बड़ा हैरान किया। जो भी कल्प्रेट था, जो उसकी स्टेटमेंट थी, उसने उस पर यह लिखा हुआ था, मैंने किसी बच्चे को, किसी बच्ची को या गली के फ़लानी नुक्कड़ से, फ़लाने मोहल्ले से, फ़लाने एरिया से 50 रुपये का तेज़ाब लिया और जाके इसके ऊपर डाल दिया। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द एशिया फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से, कि हम एसिड की सेल एंड परचेज़ के ऊपर लॉज बनाएं और उसको रेगुलाइज करवाएं, ताकि किसी भी आम आदमी की एक्सेस में एसिड ना हो और वो 50, 20 या 10 रुपए की बोतल लेके किसी की ज़िंदगी को तबाह ना कर सके। Under the Safe Home Initiative for Women and Children, the foundation joined hands with the local NGO, the Children's Global Network Pakistan, to bring relief to suffering populations in rural areas. The methodology of the program is very innovative. It is bringing education, learning to the doorsteps. It's training 1,000 females, mothers, to become teachers and to providing kits that are like a school and it comes to your house. और बच्चे साथ चीज़ों से खेलते थे और खेल खेल में बच्चों ने बहुत कुछ सीख भी लिया। जिस तरह फ्रूट्स थे, एनिमल्स थे, वो पढ़ने में तो बच्चों को याद हो जाते हैं लेकिन उनको इनकी शनाख्त नहीं होती सही तरह से, और वो जो चीज़ें थी उनको देख के जब वो खेलते थे उनके साथ, उनको पढ़ते थे, तो वो उनको बहुत जल्दी उन चीज़ों का पता चल गया। इसका ये बेनिफिट हुआ कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को एंगेज करवा सकते हैं घर में, और उनको ना सिर्फ वो एजुकेशनल चीज़ें, जो एजुकेशनल मटेरियल था उसके साथ एंगेज करवाया, बल्कि जो स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ था वो बच्चे खेलने के बाद अपने घर में मुख्तलिफ गेम जो है वो प्ले कर सकते थे। कोरोना वायरस की वजह से हमारे स्कूल 6 महीनों से बंद रहे, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई का बहुत हिर्ज हुआ। लेकिन हर घर स्कूल की तरफ से कुछ लोग आए और उन्होंने हर घर स्कूल खुलवाए और हमें एजुकेशन किट फ्राहम की। लेकिन इसके साथ साथ जो और चीज़ चिल्ड्रन ग्लोबल नेटवर्क ने की इस प्रोग्राम के तहत, हमने इन
500 घरानों को जिनको हमने एजुकेशनल और हाइजीन किट प्रोवाइड की है, उनकी माओं को भी हमने तरबियत दी कि वो इस किट को और इन अशिया को किस तरीके से बच्चों के साथ इस्तेमाल करें। सैनिटरी पैड भी हमें प्रोवाइड किए गए थे, जो कि ज़ाहिर आपको पता है गांव में ये चीज़ें कम ही यूज़ होती हैं, तो बच्चियों को नई अवेयरनेस मिली, उनको यूज़ करना बताया गया कि किस तरीके से यूज़ करता है, कितने टाइम के लिए यूज़ करते हैं और कितने टाइम के बाद इनको रिमूव किया जाता है। This Safe Home initiative is very important for our marginalized women as well, because it engages women who never get a chance of being productively involved in their children's education, in the community education, and hence making the girl child within the community very comfortable in the learning process. This is the need of the hour for Pakistan and for countries like Pakistan. To engage young women in innovative entrepreneurial ventures and foster their intellectual and economic independence, the Asia Foundation has partnered with the National Incubation Center, Karachi, to launch an online challenge for women programmers and students across Pakistan. To address Pakistan's social, economic, and environmental issues. We have run that hackathon for 48 hours. The successful women entrepreneurs will be provided small grants, like about $6,000. And the purpose of that grant is to encourage women, to find sustainable solutions towards the issues of Pakistan. ये हैकाथॉन स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स इन स्टेम विच इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ के लिए था, और इस हैकाथॉन में जो एज ब्रैकेट था लड़कियों का वो 18 to 35 year old था. I got to hear about hackathon built by her from my institute. We had a session of around 20 to 25 female students and female staff as well. There were 700 plus participants from 28 cities of all over Pakistan. We presented an Android application on mental health crisis in Pakistan. आगे भी एशिया फाउंडेशन के साथ और मिल के काम करेंगे, और ताकि वुमेन एम्पावर हों, आगे अपना इसी तरह मुल्क का और वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना हाथ बढ़ा सकें. One of the greatest opportunities in Pakistan lies in harnessing the potential of its youth and an empowered set of women. We see the ground is right for that. And if we invest right now in young women and the youth in general, we can reap these benefits. In 10 years' time, you'll see a complete transformation. So right now is the time to really engage with and invest in young women, to help them realize their full economic potential and to have them participate more fully in Pakistan's transformation.